कम्युनिकेशन स्किल। आपका बुक IT 402 हो या फिर AI 417, उसमें जो आपका कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक है उसमें जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? आपका आंसर में हो जाएगा, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज और थॉट्स फ्रॉम one person to other in a meaningful way. This is a definition of communication. Second question is, आपका second question है, what are the different forms of communication? So the different forms of communication are, first is verbal form, second one is non-verbal form, third one is written form, and fourth visual form. There are four forms of communication that is written on the board. First is for verbal, second is non-verbal form, third is written form, and fourth is visual form. Third question is, what is a verbal communication? The answer is, verbal communication is a type of oral communication wherein the message is conveyed through spoken words. The sender may communicate in the form of speeches, discussion, presentations, and conversation. These are definition of verbal communication. All the communication or the type of communication where the message conveyed in the form of spoken words. Question 4, what is your non-verbal communication? Answer is, non-verbal communication is the process of sending and receiving message without using words, either spoken or written. Example, body language, facial expressions, hand movement, etc. Okay, now question 5, what is visual communication? Visual communication is a type of communication in which the message are conveyed through pictures, signboard, logos, etc. through any visual medium. Example, objects, models, picture, etc. Okay, now question 6, what is a written communication? Written communication is a more formal way of communication and it is very mostly used in professional and business communication. Example, structure, style, content, etc. Okay, now question 7, what are the principles of effective communication? The principles of effective communication are, first is clarity, second one is attention, third consistency, fourth advocacy, fifth timeliness, sixth feedback, and seventh one is economy. Okay, now question 8, discuss the 7 C's of effective communication. The 7 C's of effective communication are, first is clear, always say clearly what you want to say. Okay, concise, always use simple language and say only what is required. जो आपको बोलना है वही बोलिए, ठीक है, और भी सिंपल वर्ड में. Concrete, always use proper word and phrase in the sentence. और जो भी आप वर्ड बोलते हैं अपने कम्युनिकेशन में प्रॉपर वर्ड होना चाहिए और फ्रेज होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए. थर्ड वन इज, फोर्थ वन, ऑलवेज यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर इन सेंटेंस. उसके बाद जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है, फोर्थ में करेक्ट फॉर्म हो गया. तो जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा उसमें हम लोग सारे वर्ड को हो सके तो आप करेक्ट बोलिए, ठीक है, और ग्रामर आपका जो बोलने का प्रोनाउंसिएशन होगा वो सही होना चाहिए. करेंट, योर वर्ड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक. योर वर्ड शुड मेक सेंस. इट मीन्स क्या हो गया कि जो आपका कम्युनिकेशन का टॉपिक होगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका वर्ड जो है मैच करना चाहिए. ठीक है, आपका वर्ड जो है टॉपिक से मिलता जुलता होना चाहिए और जो भी वर्ड बोल रहे हैं वो आपको वर्ड जो है मीनिंगफुल होना चाहिए. कंप्लीट, योर मैसेज शुड बी कंप्लीट एंड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन. इट मीन्स व्हाट, कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आपका जो वर्ड होगा उस वर्ड का एक कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, जो सामने वाले समझ जाए, जो आपका कम्युनिकेट करने का पर्पस है वो पर्पस पूरा हो जाए. ठीक है. कर्टियस, इट मीन्स बी ऑनेस्ट, रेस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली विथ अदर्स. उसके बाद आप जो वर्ड बोल रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं या कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप ऑनेस्ट रहिए, रेस्पेक्टफुल रहिए और दूसरे के अकॉर्डिंग आप फ्रेंडली रहिए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 9, विच रूल शुड बी फॉलोड बाय अ कम्युनिकेटर व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ मैसेज. अगर आप कोई मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए. आंसर,
the information being conveyed through a communication should be clear because the message is the first step in any communication and it must be transparent as possible। देखिए होता क्या है कि कम्युनिकेशन का मेन पर्पस ये है कि आपका जो मैसेज देना चाहते हैं या जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो दूसरों के पास सही ढंग से कन्वे हो जाए, यानी जो आपका पर्पस है मैसेज को कन्वे करने का वो पूरा हो जाए। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए? इन ऑर्डर टू मेक इट सिंपल अवॉइड यूजिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड सेंटेंस एंड कंफ्यूजिंग लैंग्वेज, यानी जब आप कम्युनिकेट करें तो उस कंडीशन में आपका वर्ड प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सामने वाले को ध्यान में रख के होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव मैसेज कैन बी कन्वेड इफ द सेंडर हैज क्लैरिटी इन हिज थॉट्स। अगर देखिए जो सेंडर है, जो बोलने वाला है या मैसेज कन्वे कर रहा है, अगर उसका थॉट्स क्लियर है, क्या उसको बोलना है, उसको पूरी जानकारी है, तो वह हर मैसेज को आसानी से दूसरे के सामने डिलीवर कर सकता है। अगर बोलने वाला बंदा ही अगर क्लियर नहीं है तो उस कंडीशन में मैसेज क्या कन्वे करेगा? नहीं कर पाएगा। ओके, अब है आपका द मैसेज शुड बी इजीली अंडरस्टैंड बाय रिसीवर, दिस विल हैपन व्हेन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियर। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं वो मैसेज रिसीवर के द्वारा इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यानी हम जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं उस मैसेज को रिसीवर जो है आसानी से समझ ले। ठीक है, उसको कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन का मेथड जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है द मैसेज शुड हैव अ सिंगल गोल एंड नॉट अ मिक्सचर ऑफ आइडियाज। और आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपका मैसेज कन्वे करने का तरीका है, उसमें ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप मैसेज के जरिए वन बाय वन ही कोई टॉपिक को समझाएं, एक बार में एक ही टॉपिक को कन्वे करें। अगर मल्टीपल टॉपिक को कन्वे करेंगे तो इससे क्या होगा, सामने वाले जो है उस टॉपिक में उलझ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा कम्युनिकेशन में सिंगल गोल का यूज करें, यानी सिंगल जो आपका कम्युनिकेशन मेथड है, सिंगल आपका जो मैसेज कन्वे करना है, आप एक एक करके मैसेज को कन्वे करें, मैसेज को मिक्सअप नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है डिस्कस डिफरेंट बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स लिखना है। द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुड बी ऑफ मैनी टाइप्स, लाइक आपका हो गया लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, फिजिकल हो गया एंड कल्चर हो गया। ठीक है, दीज आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू ओवरकम डिफरेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेट? The measures to overcome different barriers to communicate. First, make your ideas clear before communicating. सबसे पहले जब भी कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आइडिया जो है वो क्लियर होना चाहिए। Ensure the time of your communication is good, यानी जो आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम का लेंथ भी होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी कोई मैसेज कन्वे करने के लिए कोई छोटा मैसेज है, 10 लाइन का मैसेज है, या फिर आपको 5 लाइन का मैसेज है, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम का बॉन्डिंग होना चाहिए, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कब बनाएगा? टाइम, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आप किसी चीज को कम्युनिकेट करें और टाइम रहते हुए उस कम्युनिकेशन को खत्म करें। यूज अ लैंग्वेज योर लिसनर्स कैन अंडरस्टैंड। इट मींस व्हाट, कि उसी लैंग्वेज का यूज कीजिए जिसमें अगला जो लिसनर है, जो आपका बात सुन रहे हैं, जो उस बात को समझ रहा है, उसी लैंग्वेज में बात कीजिए आप। उसके बाद मेक योर मैसेज टू द पॉइंट एंड शॉर्ट, और हो सके तो जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेजेस है, उस मैसेज को टू द पॉइंट बोलिए और शॉर्ट में बोलिए, जिससे सामने वाले को कम समय में ज्यादा कुछ समझ में आ जाए। चेक इफ द अदर पर्सन हैज अंडरस्टैंड योर मैसेज। अगर आप चाहें तो आप टाइम बाय टाइम उस पर्सन को चेक कर सकते हैं जिसके सामने आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। चेक कैसे होगा? तो आप बीच बीच में उससे कोई सवाल पूछ सकते हैं जो आपने उन्हें कम्युनिकेट किया है, कुछ आप उससे फीडबैक ले सकते हैं, तो इससे ये पता चलेगा कि आपने जो कम्युनिकेट किया है, आपने जो चीज समझाया है, सामने वाले को समझ में आ गया। टेक केयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। इट मीन्स व्हाट, कि जब आप किसी भी चीज को कम्युनिकेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी लैंग्वेज, जो आपका टोन है या जो मैसेज है, उसको ध्यान में रखते हुए बोलना है। ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके मैसेज के अकॉर्डिंग साथ देना चाहिए, तभी आपका मैसेज जो है मीनिंगफुल होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें आपका कम्युनिकेशन को गुजरने के लिए यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आपका कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है। सबसे पहला आपका होगा सेंडर। ठीक है, द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन,
messages, the information that the sender want to convey, channel, the means by which the information is sent, receiver, the person to whom the message is sent, and feedback, the receiver's acknowledgement and response to the message. These are the elements of communication process. ठीक है, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन से एलिमेंट्स का यूज होता है, आप इस 5 का नाम लिखेंगे और एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 13 है, एक्सप्लेन फीडबैक इन कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन आपका कितना इफेक्टिव हुआ या कितना इफेक्टिव नहीं हुआ, उसमें आपका फीडबैक का एक अहम रोल होता है। फीडबैक इन कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स, रिएक्शन और इंफॉर्मेशन given by the recipients of message to the sender. It is the process of letting someone know which area they need to improve. इसमें क्या होता है कि आप जिस मैसेज को कन्वे किए उसके अकॉर्डिंग, आपके मैसेज के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स से, रिएक्शन से आपको ये पता चलेगा कि आपको मैसेज के कौन से एरिया में आपको सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला हो गया वैलिडेट इफेक्टिव लिसनिंग, सो यू आर पेइंग अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स क्या हो गया कि आपका एक अटेंशन को और अंडरस्टैंडिंग को वैलिडेट करेगा, शो करेगा कि आप किसी मैसेज के अकॉर्डिंग, जो आपका मैसेज है उसके अकॉर्डिंग आप कितने अटेंशन में हैं, कितना उसके लिए ध्यान देते हैं, किसी मैसेज को कितना बढ़िया से आपने टाइप किया, कितने बढ़िया से मैसेज को कन्वे किया, वो आपको दिखाता है आपका फीडबैक। सेकेंड, मोटिवेट पीपल्स, मेक पीपल फील गुड एंड इंकरेज देम। आपका मैसेज जो है दूसरे को मोटिवेट कर सकता है, उस आपके मैसेज से कोई दूसरा जो है इनकरेज हो सकता है, अच्छा फील कर सकता है। थर्ड, बूस्टिंग लर्निंग होगा, इट हेल्प अस लर्न एंड इम्प्रूव। फोर्थ, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग, पॉइंट आउट व्हाट्स डन वेल एंड वेयर टू इम्प्रूव। ये सब आपका इंपॉर्टेंस है कि आप फीडबैक को किस तरीके से देखते हैं और कहां कहां आपको सुधार करने की जरूरत है, वो आपके फीडबैक जो है, जो आपका फीडबैक है वो आपको दिखाएगा। यानी फीडबैक जो है एक तरह से आपकी गलती को पकड़ता है कि आपने कहां गलती किया है और आपको कहां सुधार की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन। ऐसे तो बहुत सारा टाइप्स होता है, लेकिन जनरली आपका 3 टाइप्स यहाँ लिखा गया है। ऐसे आपका निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, गुड फीडबैक होता है। ये सभी आपका फीडबैक का ही एग्जांपल है, बट यहाँ पे आपको जनरली 3 लिखा गया जो आपके बुक में अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहला हो गया फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल फीडबैक इज स्ट्रक्चर एंड प्लान टाइपिकली डिलीवर थॉट्स ऑफिशियल चैनल सच एज परफॉर्मेंस रिव्यू और सर्वे। इनफॉर्मल फीडबैक इज मोर spontaneous and can be given at any time, often in a casual setting। यानी फॉर्मल वही हो गया कि आपका स्ट्रक्चर रहेगा, प्लान वे में रहेगा और एक आपका तरीका दिखेगा, ठीक है। उसको लिखने का एक सीक्वेंस होता है, प्रॉपर तरीका होता है। लेकिन इनफॉर्मल क्या होता है, जैसे मन हुआ लिख दिए, जैसे दोस्त को लिखना है हेलो हाय लिख दिया, बस हो गया। तो इस टाइप का क्या होता है कि हर तरह का मैसेज को कहाँ यूज करना है, कौन सी जगह पर यूज करना है, वो आपको फीडबैक से पता चलता है। इनफॉर्मल में अलग होगा, किसको लिखना है वो पर्सन इंडिकेट हो जाएगा, और फॉर्मल में कौन से पर्सन को लिखा जा रहा है उससे पता चल जाता है, ठीक है। यानी फॉर्मल जो होगा वो एक रेस्पेक्टेड पर्सन को लिखा जाता है, और इनफॉर्मल जो आपको कैजुअल दोस्त को, फ्रेंड को लिखा जाता है। डिस्क्रिप्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स about strength and area of improvement, while non-descriptive feedback is more general and doesn't offer specific guidance। देखिए, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या, किसी चीज को डिटेल में लिखना, ठीक है। तो जब आपको डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जब मिलता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पूरा जो आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी कहाँ गलती हुई, कहाँ आपका स्ट्रेंथ बना, कहाँ इंप्रूवमेंट का जो होता है, वो सारी चीज आपका डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, ठीक है। बट नॉन डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, एक आपका जनरली लिख दिएगा, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन ठीक रहा और अगली बार भी आपका ठीक रहेगा, यानी इस तरह कैजुअल उसमें बोल दिया गया, जो आपको नॉन डिस्क्रिप्टिव में आता है। उसके बाद है स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड डिटेल्स एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर एस्पेक्ट और एक्शन, while नॉन स्पेसिफिक फीडबैक ऑफर जनरल और वेग कमेंट्स। मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक जो होता है एक ऐसा फीडबैक हो गया जो डिटेल और एक पार्टिकुलर एरिया में आपको फीडबैक देगा, जबकि नॉन स्पेसिफिक क्या होता है,
आपको कोई उसका पार्टिकुलर एरिया नहीं होता, जनरली जहां जैसा मन हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोग कमेंट्स को लिख देते हैं, फीडबैक्स को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन आपका टोटल 15 क्वेश्चन था जो आपको कम्युनिकेशन स्किल से था। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन स्किल मैंने पहले ही बताया है कि कम्युनिकेशन स्किल का ये जो क्वेश्चन है, चाहे आपका IT 402 हो या फिर AI 417 हो, दोनों के लिए सेम यूनिट है और सेम टॉपिक है।